Very good evening, everybody. Wishing you and whole of your family very happy Deepavali. This is Shekhar once again with you from Kanpur. Today I am talking about the new emerging leader in this Bharatvarsh, who is a very unknown as far as north part of India is concerned, who is not very much acknowledged by our main extreme Lutean gang, because our Lutean gang sitting at Delhi do have so many works to do. That is why that particular emerging honest leader is not known to most of the Indians. He is the one and only Mr. K. Annamalai. Most of the people heard this name first time. K. Annamalai is the youngest BJP president of Tamil Nadu. And as per as background of this person is concerned, when you know about his history, his backlife incidents, you really think how a common person belongs to a farmer family come down to Tamil Nadu and in very short span of time he become a phenomena not only in Tamil Nadu, he is a phenomena in the all southern part of India. He is the one and only Mr. K. Annamalai. He basically belongs to a farmer family at the center of Tamil Nadu. He has done his engineering from Coimbatore. After his engineering, he has joined IIMS, and that is in Uttar Pradesh, IIM Lucknow, and done his management course for 2 years. जब मिस्टर के अन्नामलाई लखनऊ में थे, अपने प्रोजेक्ट में जब वो बाहर निकलते थे तो उन्होंने आसपास देखा, गरीबी देखी. Then he realized कि यार ये कॉर्पोरेट की दुनिया में जाके, अमेरिका में जाके सीईओ बनना या कनाडा में जाके किसी कंपनी के अंदर प्रेसिडेंट बनना, that cannot be objective of my life to achieve with. Then he decided to serve the people. कि भैया अब तो मुझे लोगों के लिए कुछ करना है. When he decided to serve the people, he started preparing for UPSC, and he has selected in IPS, Indian Police Services. वो IPS बने और IPS में उनकी जो पोस्टिंग हुई वो हुई कर्नाटका कैडर में. तो बीइंग एन IPS ऑफिसर इन कर्नाटका कैडर, ही हैज़ बीन सर्व्ड अराउंड 8 years इन कर्नाटका. उन्होंने लगभग 8 साल की अपनी नौकरी करी कर्नाटका के अंदर SP और DSP के तौर पे. और जब आप उनके इस कार्यकाल को देखेंगे, when you see that kind of his tenure of 8 years being an IPS, I think everybody is supposed to be India, whether it is south or north, has been seen the movie Singham, whether it's the original Singham that's supposed to be made at southern part of India, और ये सिंघम जो बॉलीवुड के अंदर बनी हुई है, सबने देखी है. तो सिंघम में जो करेक्टर है, द करेक्टर इन दिस मूवी ऑफ सिंघम विच वी हैव सीन, जहां पर एक गांव के थाने पे जब सिंघम के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो पूरा गांव खड़ा हो जाता है उसके साथ में. के अन्नामलाई जिस भी पोजीशन पे कर्नाटका कैडर के IPS के तौर पे रहे, चाहे बेंगलोर में रहे या कहीं और रहे, DSP या SP की रैंक पे, जब उनका ट्रांसफ़र होता था
उस एरिया से, तो उस एरिया के लोग उनके ऑफिस को घेर के वहां पर प्रोटेस्ट करते थे। Whenever this Mr. K. Annamalai has been transferred being an IPS from their area, the people from that particular area has been protested in front of his office, and that is not because he is against with Mr. K. Annamalai. वो प्रोटेस्ट इसलिए करते थे कि भैया ऐसे ऑफिसर को, ऐसे ईमानदार, ऐसे मानवता को देख के न्याय करने वाले व्यक्ति को हमारे एरिया से ट्रांसफर ना किया जाए। People of that particular area has been protested because don't transfer this honest, this human police officer from my area. He is a real Singham. ये एक रियल सिंघम है आज की तारीख में भारत के अंदर। फिर वहां पर आई डोंट नो आफ्टर दिस, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, बट समबडी हैज अप्रोच्ड हिम, और उनकी अपनी एक जिज्ञासा थी कि यार मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है, तो उन्होंने अपने नौकरी से इस्तीफा दिया, इज रिजाइन फ्रॉम हिज सर्विसेज ऑफ IPS, और उन्होंने एक पद चुना बीजेपी का तमिलनाडु का अध्यक्ष बनना। और विश्वास करिए मित्रों, मैं ये क्लेम नहीं करता, आई एम नॉट क्लेमिंग द बीजेपी विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन इन तमिलनाडु, इज सपोज टू बी हेल्ड इन 2026 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2026 में शायद होगा अगर मैं गलत नहीं होता। लेकिन जिस ढंग से मिस्टर के अन्नामलाई इज वर्किंग इन तमिलनाडु, जिस ढंग से के अन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर काम कर रहे हैं, लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है, वो तमिलनाडु और सदर्न इंडिया के नए मोदी की तरीके से उभर के आ रहे हैं भारत की राजनीति के अंदर। के अन्नामलाई it seems to be in Tamil Nadu, in the southern part of India, is a new evolving Modi. आप लोगों को ये भारत के ये खैराती और लुटियन गैंग वाले इस चीज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वो लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और जो विशियस साइकिल है, द विशियस नेक्सस ऑफ पेरियार एंड द कम्युनिस्ट्स which made this country divide on the name of Aryan invasion and Dravidians. The person, Mr. K. Annamalai, have the capacity and ability to destroy that particular vicious cycle of these evils. जिन लोगों ने, जिस पेरियार ने, जिस कम्युनिज्म ने भारत को बांटने के लिए, नॉर्थ और साउथ को बांटने के लिए एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो फर्जी है, उसको देश के अंदर बेचा, और द्रविडियन को आर्यन के खिलाफ, आर्यन को द्रविडियन के खिलाफ आपस में लड़ाने की कोशिश करी। उनके खिलाफ मिस्टर के अन्नामलाई जो आज काम कर रहे हैं वो अद्भुत है। और क्यों ना हो, हम नॉर्थ इंडियन की तरफ से, हम उत्तर भारतीयों की तरफ से, पूरे देश की तरफ से एक नेता जो असुरों के साथ संघर्ष कर रहा है, के अन्नामलाई, जिसके अंदर जो कैपेसिटी है, जो उसकी काबिलियत हमने देखी है, वो केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। क्यों ना एक भारत का एक सपना, उत्तर भारतीयों का एक सपना, द ड्रीम ऑफ नॉर्थ इंडिया, द ड्रीम ऑफ वेस्ट इंडिया, somebody from southern India will lead this country. That particular dream seems in Mr. K. Annamalai. तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है
भारत के अंदर बहुत से प्रदेश हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारा देश है, जहाँ पर ये लुटियन मीडिया या खैराती मीडिया को समय नहीं मिलता जिसके बारे में बताने के लिए आप लोग खुद यूट्यूब पे जाके कि अन्नामलाई को जो सर्च करेंगे गूगल में जाके, उनके बारे में आपको जानकारी होगी कि एक ईमानदार व्यक्ति, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जब काम करता है तो तमिलनाडु में के जो असुर हैं, जो तमिलनाडु राजनीति के जो असुर हैं, जिन्होंने भाषा के नाम पे, जिन्होंने आर्यन इन्वेजन के नाम पे, द्रविडियन के नाम पे इस देश को बांटने की कोशिश करी थी, उनसे भी एक ईमानदार व्यक्ति लड़के और जनता का समर्थन ले सकता है। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।